سب سے زیادہ اگر زندگی برباد کوئی کر رہا ہے تو ہمارے سرجا پوری لوگ کر رہے ہیں، جو ہمارے دیہاتی لوگ ہیں وہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ خدا را جلسے میں آتے ہو تو زندگی برباد نہ کرو۔ تم یہی سوچ رہے ہو بیٹا تو نہیں دیکھ رہا ہے، باپ تو نہیں دیکھ رہا ہے، ماں تو نہیں دیکھ رہی ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ خدا کی قسم کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا خدا دیکھ رہا۔ باوقار علماء ذوی احترام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، ضعیف چاچاؤں اور پردے میں رہ کے سننے والی خواتین اسلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شام کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کا جواب محبت سے دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الارض والسماوات والصلاة والسلام علی صاحب الفضل والشفاعات وعلی الحسین ورفقائہ الذین فازوا بالشہادات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما، اے اشف سمانہ سمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے قلی غوث اعظم، سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ غوث اعظم لگاتے رہو، اس میں اعظم ہے یہ یہی لاحول ہے، جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ بعد توحید کے متبالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ ورثہ کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، مفتی اعظم ہند کے چاہنے والے، والحضور تاج الشریعہ سے بے انتہا محبت عشق پیار کرنے والوں، آؤ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، گرتوں کو اٹھانے والے نبی، روتوں کو ہنسانے والے نبی، میدان محشر میں کام آنے والے نبی، ہماری اور آپ کی قبر میں اپنے رخ انور کی زیارت کرانے والے نبی، گلستانی رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، اللہ کے پیارے رسول، جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا، جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نکھار پیدا ہو گیا، جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی انہیں امام احمد رضا و تاج الشریعہ کا زمانہ نصیب ہو گیا۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی، زور سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر اور ایک بار جی لگا کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب دوسرا خطیب آ جائے منبر رسول پر تو پہلے والے خطیب کا وقت ختم ہو گیا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ خطبہ پڑھتے پڑھتے تقریر ختم کر دی جائے۔ الحمدللہ آپ آنے میں تاخیر کرتے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں، ہم جلسے میں جا رہے ہیں، آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں جلسہ سننے جا رہا ہوں، لیکن جتنے لوگ جلسے میں نہیں بیٹھے ہیں اس سے زیادہ لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، دکانوں میں گھوم رہے ہیں۔ ایک بات بتائیے، اگر ایک دن جلسے میں چائے کی دکان، پان کی دکان یا مٹھائی کی دکان، فل فتا کی دکان، کھیلنے کودنے کی دکانیں اگر نہ آئے تو کیا ہمارا جلسہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہمارا جلسہ ہو سکتا ہے، ہماری کانفرنس ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ قبرستان کی چار دیواری کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے۔ آج تو ہمیں ایسی جگہ پر بیٹھنا چاہیے اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، عاقبت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ عقل مند انسان وہ نہیں ہوتا ہے جو صرف دنیا بناتا رہے، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے اسی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاریاں کر لے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک آدمی اگر مارکیٹ جاتا ہے تو پہلے تیاری کر لیتا ہے، ایک آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے تیاری کر لیتا ہے، یہاں سے کلکتہ جاتا ہے انسان تیاری کرتا ہے، یہاں سے دلی ممبئی ہریانہ جاتا ہے انسان تیاری کرتا ہے، یہاں سے آدمی اجمیر چلا جائے، کالپی کچوچا بریلی چلا جائے تیاری کرتا ہے، ایک آدمی بغداد جائے تیاری کرتا ہے، ایک آدمی مدینہ جائے تیاری کرتا ہے، مکہ المکرمہ جائے تیاری کرتا ہے، لیکن ہر کسی کو پتا ہے اس دنیا کو ہمیں چھوڑ کر جانا ہے، اس بنگلے میں رہنا نہیں ہے، یہ چار دیواری میں رہنا نہیں ہے، یہ بینک
बैलेंस हमारे पास रहने वाला नहीं है, हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। तो आपने तैयारियां कितनी की है? ईशा की नमाज आपकी छूटी है, आप जलसे में आ रहे हैं, लेकिन अय्याशी आप भी कर रहे हैं, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, जवानों को देखा जा रहा है मार्केटों में घूम रहे हैं। तुम्हारे दिल में यह ख्याल पैदा नहीं होता है इंसान की एक एक मिनट बड़ी कीमती होती है, उसकी कद्र होनी चाहिए। इंसान बलवान नहीं होता है, कद्र जो है वक्त बलवान होता है। इंसान के हाथ से जब वक्त निकल जाता है तो फिर उसके हाथ में कोई चीज नहीं आती है। अभी मैं हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम हुसैन मिसबाही मेरे सन भाई हैं, हमारे सनबाब मास्टर साहब से, हाजी साहब से भी मैं मिलकर आ रहा हूं। वहां पर डॉक्टर लोग बैठे थे, पूछा गया कि अब जो है मुझसे यहां से उठा नहीं जाता है, क्या मतलब है? एक वक्त ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी, एक साथ ऐसी आएगी, एक पल ऐसा आएगा न तुझसे उठा जाएगा न तुझसे बिठा जाएगा। आज कहते हो मैं बलवान हो, मैं ताकतवर हो, कुरान में मेरा रब फरमाता है खुलिकल इंसानो दईफा, हमने इंसान को कमजोर बनाया है। कितना इंसान कमजोर है, कितना इंसान बेबस है, कितना इंसान लाचार है। आप जानते हैं आप कितना लाचार है। अगर यही रूह जिसमें से परवाज कर जाती है, पानी तो है उठा के गुस्ल नहीं कर सकते हो, कफन का कपड़ा तो है पहन नहीं सकते हो, कब्रिस्तान खुद जा नहीं सकते हो, तुम्हारा बेटा रोता है आंख खोल के देख नहीं सकते हो, तुम्हारी बीवी जो है फरियाद कर रही है कानों से सुन नहीं सकते हो। इंसान इतना बेबस है, जो इंसान इतना बेबस होगा तो मार्केट में जिंदगी बर्बाद करेगा, दुकानों में जिंदगी बर्बाद करेगा और जगह पर जिंदगी बर्बाद करेगा। मुसलमानों याद रखो, सबसे ज्यादा अगर जिंदगी बर्बाद कोई कर रहा है तो हमारे सुरजापुरी लोग कर रहे हैं, जो हमारे देहाती लोग हैं वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। खुदारा जलसे में आते हो तो जिंदगी बर्बाद ना करो। तुम यही सोच रहे हो बेटा तो नहीं देख रहा है, बाप तो नहीं देख रहा है, माँ तो नहीं देख रही है, कौन देख रहा है? खुदा की कसम कोई देखे या ना देखे लेकिन मेरा खुदा देख रहा है। मैं नहीं कहता, कुरान मेरा फरमाता है वो नहनो अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है, वो खुदा देख रहा है, वो मेरा महबूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा वाली गुफ्तगू, सरवरे कायनात कॉन्फ्रेंस। अफसोस बहुत होता है आज हमारे जलसों में हम देख रहे हैं कि लोग इतने आते हैं लेकिन जलसों में बैठने की कोशिश नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम हुसैन का जवाब नहीं, नकीब सदाबहार, नकीब आसम हिंदुस्तान हजरत हाफिज कारी शाही रजा किशनगंजवी का कोई जवाब नहीं है। हजरत अल्लामा मौलाना अब्सार साहब का कोई जवाब नहीं है। जो मेरे बाद खतीब आ रहे हैं इस खतीब का जवाब नहीं है। अभी दो दो शायर आप निगाहों के सामने देख रहे हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। वहीं पर हजरत अल्लामा मौलाना हमारे हजरत बैठे हुए हैं, आप जानते हैं उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, आप उनकी जो है गुफ्तगू भी सुनेंगे, आप उनका चेहरा देख रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना बदरुज़्ज़मा साहब बैठे हैं, वक्त बहुत कम है। शायर कहता है जमीन पर फलक पर न तारों में देखो, जमीन पर फलक पर न तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो, जमीन पर फलक पर न तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो, और कमर के हो टुकड़े पलट आए सूरज, ये कुदरत नबी के इशारों में देखो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा नौशाद आलम नईमी साहब बैठे हुए हैं, इलाहाबादी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह निजामी हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। शायर कहता है, खुदा की कसम शायर कहता है, जमीन पर फलक पर ना तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो, कमर के हो टुकड़े पलट आए सूरज, ये कुदरत नबी के इशारों में देखो। और अगर शान महबूबे हक देखना हो तो कुरान के 30 पारों में देखो। आज आपसे मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग बहुत अक्लमंद है और ये गांव आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पढ़ा लिखा गांव है, शहर से मुत्तसिल है, लोग जानते हैं। इन लोगों ने प्रोग्राम किया है सरवरे कायनात कॉन्फ्रेंस, वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी 4 जो है दीवारी यानी कब्रिस्तान के 4 दीवारी के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम किया है। आदमी वही अच्छा होता है जो दुनिया में रहता तो है लेकिन आखिरत की तैयारियां करता है, आखिरत के बारे में फिक्र करता है। वहां उनके वालिद हैं, उनके दादा है, उनके परदादा है, उन्होंने कहा सुनिए हमने अपना घर तो बनाया है, अब कब्रिस्तान को चारों तरफ से घेर दिया जाए ताकि हमारे मरहुमी जो कब्रिस्तान में
में है, अल्हम्दुलिल्लाह जानवर के पेशाब पाखाना से महफूज हो। क्या बात है, बेशक चार बेशक। दीवारें इसलिए की जाती है ताकि हमारे मरहुमीन, और एक बात याद रखिएगा हजरत, देखिए इंसान को गुरूर आए, तकब्बुर आए, फख्र होने लगे, अपने आप में नाश करने लगे तो कहीं मत जाए। कहां जाए? कब्रस्तान चला जाए। जब इंसान कब्रस्तान जाता है तो उसका सारा गुरूर टूट जाता है। अगर अमीक नजरों से हाथ बांध कर देखेगा तो वो सोचेगा मेरी ताकत कितनी है, मुझसे बड़े पहलवान को जमीन के कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है, मुझसे ज्यादा ताकतवर को जमीन के कीड़े मकोड़ों ने ग़िज़ा बना लिया है, मुझसे ज्यादा पैसे वाले को जमीन ने जो है अपने अंदर दफन कर लिया है, उसको बराबर कर दिया है। इंसान आपकी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है, आपकी बेसात क्या है, हमारी बेसात क्या है, मेरी मां और बहनों की बेसात क्या है? ये कब्रिस्तान है। आज आप जानते हैं, मेरे आका फरमाते हैं जब इंसान की रूह निकलती है, इंसान के जिस्म से रूह परवास करती है। हजरत एक जुमला यहां पर देना चाहता हूं, आज पूरे इलाके वालों से एक मेरा खिताब यह है कि जब इंसान का जिस्म बीमार होता है तो आप देखते हैं कि कोई आदमी यहां से निकलता है, किशनगंज जाता है, कोई पूर्णिया जाता है, कोई यहां से सिल्लीगुड़ी जाता है, कोई यहां से पीजी जाता है, कोई एम्स जाता है, और अगर पैसा बढ़ जाए तो इंसान बेंगलोर जाता है, केलोर जाता है। क्यों? क्योंकि जिस्म बीमार हो गया है। जब जिस्म बीमार होता है तो एक जगह से दूसरी जगह इंसान जाता है, एक डॉक्टर से दूसरी डॉक्टर के पास जाता है, एक तबीब को छोड़कर दूसरे तबीब के पास जाता है। लेकिन पूरे इलाके वालों कान खोल के सुनो, जब जिस्म बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो। मेरे पूरे इलाके के अक्सर लोगों की रूह बीमार हो गई है, लेकिन इलाज की कोई परवाह नहीं है। इंसान का जिस्म बीमार होता है तो सिर्फ जान जाती है, रूह बीमार हो जाए तो ईमान चला जाता है। क्या बात, बेशक बेशक बेशक। इंसान की रूह बीमार हो गई है। आपने कभी किसी तबीब को देखा, आपकी रूह बीमार हो गई है? कभी किसी आलिम के पास आया, आपकी रूह बीमार हो गई है? इमाम साहब के पास आया, आपकी रूह बीमार हो गई है? उलमा के पास आए, आपकी रूह बीमार हो गई है? अल्लाह वालों की बारगाह में गए, आपकी रूह बीमार हो गई है? बुजुर्गान दीन की बारगाह में गए? नहीं। अगर जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर इलाज करता है, रूह बीमार हो जाए तो अल्लाह वाला उसका इलाज करता है। क्या बात है, क्या तो बात कभी आप अल्लाह वाले के करीब गए नहीं, उलमा के करीब गए नहीं। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं जब इंसान की रूह निकलती है, अगर इंसान को पता हो जाए, फरिश्ते आपस में बात करते हैं। तारीख में आया है जब इंसान को कब्र के अंदर लेटाया जाता है तो याद रखिए चंद दिन के बाद उसके सारे रिश्तेदार भूल जाते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि कोई मेरा रिश्तेदार था, ऐसा लगता नहीं है कि कोई मेरे चाहने वाला था, ऐसा लगता नहीं है कोई मेरे जानने वाला था। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, फरिश्ते जब इंसान को कब्र में लेटाया जाता है, उस कब्र की मिट्टी फरिश्ते उठाते हैं और उनके रिश्तेदारों के स्तरों पे फेंक देते हैं। जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान से बाहर आते हैं वो उसको भूल जाते हैं, उसकी मोहब्बत दिल से निकल जाती है, उसका प्यार दिल से निकल जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे आका फरमाते हैं जब इंसान की जिस्म से रूह परवास कर जाती है, फरिश्ते बात करते हैं, लेकिन आप सुनते नहीं है, हम सुनते नहीं है। कान तो हो लेकिन हमारे पास सुनने की समात नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई इंसान ये सुन ले, जिन्नात सुनता है, फरिश्ते सुनते हैं, खुदा की कसम अगर फरिश्ते जो बात करते हैं हैवान और जिन्नात सुनता है, इंसान सुन ले बाप का जनाजा है, बेटा सुन ले तो बाप का जनाजा रह जाएगा, बाप का जनाजा पड़ा पड़ा सर जाएगा, बेटा जो है जंगल में निकल जाएगा, भाई जंगल में निकल जाएगा, घर वाले जंगल में निकल जाएंगे। आपको क्या लगता है कब्र में जो है इंसान जाएगा आसानी से चला जाएगा? नहीं, कीड़े मकोड़ों के घरों में आपको रहना होगा, सांप बिच्छू के घर में आपको रहना होगा। अल्लाह अकबर, वहां पर इस तरीके से तारीकी होगी, वहां पर इस कदर अंधेरा होगा, ऐसा भयानक जो है घर होगा, ऊपर मिट्टी नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी, हर इंसान को जाना होगा। कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता है। तो जब सबको जाना है, उस घर में सबको पहुंचना है, आपके पास तैयारियां कितनी है, आपके दामन में नेकियां कितनी है? जब आपको जलसा करके लोगों को बुलाया जाता है तो लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं, लोग मेहमान नवाजी करने लगते हैं, इतने लोग रास्ते में घूमते हैं, सड़कों पे घूमते हैं। ऐ लोगों, अपने दिलों में हाथ रखो और सोचो। याद रखो, एक जुमला ये कहना चाहता हूं, आने का सिस्टम तो है, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, बाप आता है तो बेटा आता है, बेटा आता है तो पोता आता है। आने का सिस्टम सबको मालूम
है, लेकिन जाने का सिस्टम किसी को पता नहीं है। बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, दादा रह जाता है, बाप का इंतकाल हो जाता है। क्या होता है कि नहीं, बोलिए ना भाई। नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, दादा रह जाता है, पोता चला जाता है। तो जाने का सिस्टम नहीं है। जब मौत आएगी, मलकुल मौत आएंगे, आपकी रूह लेकर चले जाएंगे। आपके पास कितनी नेकी है, आपके पास कितने अमाल अच्छे हैं, आपके दामन में कितने जो है अच्छी नेकियों का अंबार है। नहीं, शायर कहता है कब्र में नेकियां बचाती है, हश्र में भी काम आती है। जिसके दामन में नेकियां न हो वो नाश करे, जिसके पास इबादत की गठरी ना हो वो नाश करे, जो सर्वसुजूद खुदा की बंदगी ना करे वो नाश करे। ऐ मुसलमान, सबसे ज्यादा अगर नाश करता है तो हमारा मुसलमान नाश करता है। वो सोचता है अरे मेरे पास सब है, गौस है, ख्वाजा है। ख्वाजा को ऐसे मान लेने से नहीं होगा। ख्वाजा को मानने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप को मान के दिखा। अगर तेरे माँ बाप नाराज है तो खुदा की कसम खाकर कहता हो, गरीब नवाज नाराज है, बगदाद के गौस नाराज है, मदीने के मुस्तफा नाराज है, मेरा खुदा नाराज है। बेशक बेशक बेशक। आप क्या समझते हैं? आप सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसे ही कर लिया तो मुझसे सब लोग राजी हो जाएंगे। गौसे आजम को राजी करना है तो पहले माँ बाप को राजी कर लो। आज हमारे इलाके के हालात हैं, हजरत ये जुमला मुझसे कहने के लिए कहा गया है। मेरे भाई मास्टर अल्हम्दुलिल्लाह नजरुल इस्लाम साहब आए हैं, उन्होंने कहा था माँ के ताल्लुक से दो चार बातें हो जाए। आज आपको एक जुमला कहना चाहता हूँ। आज हमारे नौजवान कहते हैं हम तो पीर साहब से दुआ करवाए हैं, हम तो अपने जो है हाथ जो है मखदूम से दुआ करवाए हैं, हमने जो है अपने गांव के फलाना से दुआ करवाए हैं। मैंने कहा यार सबसे तो तुमने दुआ करवाई है लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। उसने कहा नहीं हुई। मैंने कहा सुन ले, 1000 मौलवी मिलकर दुआ करे, 1000 मुफ्ती मिलकर दुआ करे, 1000 पीर मिलकर दुआ करे, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, तेरा बाप तुझसे नाराज है तो दुआ कबूल नहीं होगी। तेरे बूढ़े माँ बाप घर के अंदर है, रात की तारीकी में चला जा, उसके पैर दबाने लग जा। खुदा की कसम तेरे बूढ़े माँ बाप हाथ उठाकर दुआ कर देंगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे, पहले रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाएगी। जहाँ दुआ कबूल होती है वहां तो तू दुआ कबूल करवाता नहीं है, उस माँ के कदम चूमता नहीं है। हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। खुदा की कसम वो दरसगाह में पढ़ाने के लिए कैसे ही मसनद पर बैठे हैं, 2 शहजादे और 2 शागिर्द खड़े हो जाते हैं। कहते हैं सरकार का क्या बात है? हुजूर हमने रात में ख्वाब देखा है। हुजूर मैं कसम खाकर कहता हूं मैंने ये ख्वाब देखा है। कहा क्या ख्वाब देखा है? उसने कहा हुजूर मैंने ख्वाब ये देखा है कि मैंने रात में ये देखा आपके दाढ़ी मुबारक में खुदा की कसम हीरे और मोती चमक रहे थे और आपका चेहरा 14वीं चांद जैसा चमक रहा था। मैंने रात में ख्वाब में देखा है। तो दूसरे शागिर्द ने कहा बैठ जा। वो दूसरा शागिर्द खड़ा हुआ, खुदा की कसम खाकर कहता हूं हुजूर मेरे दोस्त ने जो ख्वाब देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। आपकी दाढ़ी मुबारक चमक रही है और आपका चेहरा 14वीं चांद जैसा चमक रहा है। हमने रात में ख्वाब में देखा है। हुजूर मैंने भी यही ख्वाब देखा है, लेकिन इसकी ताबीर होगी क्या? इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े आलिम दीन से जब शागिर्दों ने सवाल किया तो कहा हुजूर क्या बात है? हमने ख्वाब ये देखा है, इसकी ताबीर क्या है? हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बेटा तुमने जो देखा है सही देखा है। सरकार क्या मतलब है? उन्होंने कहा बेटा सुन ले, आज ईशा की नमाज के बाद जब मैं घर गया था तो मेरी माँ के कमरे में चला गया, मैंने देखा मेरी माँ सो गई है। मेरी माँ के करीब में बैठ गया, मेरी माँ के पैर दबा रहा था और मैं जब माँ के पैर को दबा रहा था मेरी दाढ़ी मुबारक माँ के कदमों से बार बार लगता था। खुदा की कसम तुमने जो मेरे चेहरे में नूर देखा है, मेरी दाढ़ी में हीरे और मोती से ज्यादा चमकता देखा है, किसी और के बदौलत नहीं। मेरी दाढ़ी जो माँ के कदमों से टच हुआ था उसके बदौलत अल्लाह ने मेरे चेहरे में नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, सरवरे कायनात कुल फरेद। बहुत अच्छा। आप कहां आ गए हैं, हम कहां आ गए हैं हजरत? इसलिए जो है वक्त बहुत कम है, ऐसा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आप जानते हैं हजरत बाकी बिल्ला का मज़ार कहाँ है? ये कौन है? हजरत बाकी बिल्ला हुजूर मुजद्दिद अल्फ़सानी, खुदा की कसम इनके पीर है। हजरत बाकी बिल्ला जिसको यकीन न आए तो दिल्ली चला जाए, न्यू दिल्ली के अंदर हजरत बाकी बिल्ला के मज़ार पाक है। हुजूर मुजद्दिद अल्फ़सानी के पीर है। किसी ने पूछा हुजूर ये
रुतबा, ये मकाम, ये मनसब, ये बुलंदी आपको कैसे मिली है? इतना बड़ा पावरफुल, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मनसब तुम्हें कैसे मिला है? हजरत बाकी बिल्ला कहते हैं, खुदा की कसम खाकर कहता हो, ये रुतबा, ये मकाम, ये मनसब मुझे और किसी चीज से नहीं मिली है। अगर ये मकाम मिला है तो मेरी माँ की दुआ के सदके में मिला है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान आज उसी माँ को हम अपने घर से निकालते हैं। बेटा संगे मरमर के मकान में रहता है, माँ खुदा की कसम उस घर में रहती है जो घर में रहने के लायक नहीं है। हमने देखा है लोग तकसीम करते हैं अपने माँ बाप को, 3 महीना तू खिलाना, 3 महीना तू खिलाना। अरे नादान, वही तेरा बाप है जो अपनी पीठ की चमड़ी जलाया है। तेरी माँ वो है तो हाथ कितनों मर्तबा रोटी बनाते हुए जलाई है। यकीन ना आए तो अपने घर जा और खुदा की कसम सीने में हाथ रखकर बता, तेरी बीवी रात को 2-3 बजे 10 दिन सिर्फ रोटी बना के मांग ले, तेरी बीवी किसी ना किसी दिन कहेगी मेरे शोहर खाना रखा है खा लेना, लेकिन वो तेरी माँ ही होगी। रात के 3 बजे भी जाओगे, बेटे का ख्याल, माँ बिस्तर में रहती है फिर भी बेटे का ख्याल। अब माँ किसे कहते हैं? माँ किसे कहते हैं आप? माँ बाप को इबादत की तरह लगता है, उनका दीदार ज़ियारत की तरह लगता है। और मेरी माँ रहती है मौजूद मेरी ही घर में, इसलिए मेरा घर जन्नत की तरह लगता है। हजरात मोहतरम, मैं आपसे, चूंकि उलमा किराम जानते हैं मैं जज्बाती खतीब हूँ, लेकिन जज्बाती खतीब होने का ये मतलब नहीं है कि मैं माहौल नहीं समझता। मैं माहौल को समझता मेरे दोस्त। खुदा की कसम, हर मुकर्रिर नजराना लेने नहीं आता यार। अगर कोई मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना राजस्थान की सरजमीन से आए हैं हजरत की मेहनत से, तो वो सिर्फ नजराना लेने नहीं आए हैं। वो जानते हैं अल्लाह ने मुझे दाई बनाया है, दीन की तबलीग के मुझे जाना है, लेकिन वहां पैगाम देने के लिए क्या बात है, ताकि बेशक, कौम सुधरे, ताकि हमारे समाज के लोग सुधरे। आज आप जानते हैं गरीब नवाज पर बात आ गई है, आप क्या करते हैं? आप दरूद पाक पढ़िए, नमाज पढ़िए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। खुदा की कसम, मेरे गरीब नवाज की नजरें इनायत उठ जाएगी तो याद रखिएगा, हुकूमत तो कल भी मेरे गरीब नवाज की थी, हुकूमत तो आज भी मेरे गरीब नवाज की है। कयामत की सुबह तक अगर हिंद का कोई राजा रहेगा तो भारत का वो ख्वाजा और कोई नहीं होने वाला है। शायर कहता है तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का, रोजा मेरे ख्वाजा का। जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए, बढ़ता है वहां घर घर सदका मेरे ख्वाजा का। और चाहे का ना सागर, चाहे तो समंदर भी पी जाएगा एक पल में कासा मेरे ख्वाजा का। क्या बात है, जाएगा एक पल में कासा मेरे ख्वाजा का। भारत की सरजमीन, खुदा की कसम, बहुत भारत की सरजमीन और बिलखुसूस अजमेर की सरजमीन वो जमीन है जो वहां की मिट्टी बड़ी अक्सीर हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त नहीं है कि मैं आगे बात फैलाऊं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप जलसों में आए तो जलसे के तकद्दुस को पामाल न करें। जलसों में आए तो आप जलसों का एहतराम करने लगे। जलसे में आए तो आप ये सोचे कि मुझे दुकान में जाकर के वक्त नहीं गुजारना है, वक्त बर्बाद नहीं करना है। जलसे में जाना है, मुस्तफा की मोहब्बत में बैठना है, चंद बातें सुनना है, उसके बाद अपनी आखिरत, अपनी आखिरत को बना के लौटना है। मेरी मां और बहनों, तुम भी बैठी रहो, आप भी बैठे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, 4 दीवारी का सवाल है। आज हम लोग जो है खुदा की कसम क्या करते हैं? हम कहते हैं हम सियासत करते हैं। मैं कहता हूं सियासत कीजिए, सियासत करना जायज है, लेकिन आज जो हम लोग सियासत करते हैं ये जायज नहीं है। हम सियासत करते हैं तो क्या करते हैं? अपने भाई को जो है अपने भाई से दूर कर देते हैं। वो टीएमसी है, मैं सीपीएम हो, वो कांग्रेस है, यानी जो पार्टी जिसकी करता है उसको अपना भाई से ज्यादा मानता है, लेकिन जिस माँ के पेट में दोनों रहा है उस भाई को छोड़ देता है, भाई के घर के सामने दीवारें लगा देता है। मैं इसलिए समझाना चाहता हूं, आज थोड़ी दौलत हमारे पास आ जाए, हम भाइयों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, अपने करीब वाले को आदमी नहीं समझते हैं, इंसान वो नहीं
नहीं होता। दौलत तो थी यार, तुम्हारे और हमारे पास कितनी दौलत है, दौलत तो अल्लाह ने दी थी। हजरत उस्मान गनी को कह दो सुभान अल्लाह, जिसे मेरे नबी ने 2 शहजादियां दी थी, जिसके बारे में दुनिया में जो है बहुत मशहूर है। और आप जानते हैं हजरत उस्मान गनी का खिताब जो है जुन्नूरैन भी है, और हजरत जुन्नूरैन मेरे नबी ने 2 शहजादियां उस्मान गनी को अता की थी। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी थे, जब मेरे आका हिजरत करके मक्के से मदीना आए थे तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत के पास दीवाने आकर कहने लगे, या नबी अल्लाह बहुत परेशान है, पानी की जो है किल्लत है, हम कुछ लोग प्यासे रहते हैं। आका पानी की फरावानी नहीं है, यहूदी के पास कुआं है, आका क्या किया जाए? मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम उस्मान के पास चले जाओ और जाकर के कहो कि उस्मान को नबी बुला रहे हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान एक बार हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हकीकत में मुझे बहुत दूर जाना है और मेरा टाइम जब खत्म हुआ उस वक्त मेरी तकरीर शुरू हुई। हाँ, जी क्या बात। टाइम जो खत्म हुआ ना हजरत, उस टाइम मेरी तकरीर शुरू हुई। उस वक्त मुझे हर हाल में निकल जाना था, लेकिन क्या करें, पहले दावत इन लोगों ने दी थी, उन लोगों ने मख्फी रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी होगी, बस 2-3 मिनट सुने। और मैं बिलखुसूस गुजारिश करूंगा बिजली के लोगों से और अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर आए। शहर मुत्तसिल है, वहां से भी लोग आए हैं और 4 दीवारी की बात है। आपके सामने मेरी चंद बातें रखें। इस्लाम, सियासत आप करते हैं, हम करते हैं, हम लोगों की सियासत गंदी है, लेकिन सियासत देखिए। जब आए तो मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान का फिदा का भी वो उम्मी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान आका फरमाए। मेरे आका ने फरमाया, उस्मान जाओ यहूदी के पास और जाकर कहना कि मैं तुम्हारा कुआं खरीदने के लिए आया हूं, बेचोगे? क्या बात है, क्या बात है, बेचोगे? सुभान अल्लाह। कुआं बेचोगे? उसने कहा, आका, ये नहीं कहा आका ये पैसा तो बाल बच्चों के लिए है, ये नहीं कहा आका ये दौलत तो मैंने मेहनत से कमाई है, आका ये पैसे का मालिक तो मैं हूं। वो जानते थे जो तन मन धन की सारी कुर्बानियां नबी के कदमों में विचार निछावर करता है वही मोमिन है, मैं नहीं कहता। बुखारी शरीफ उठाइए, आप पढ़ेंगे आका की हदीस, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, कबीले से ज्यादा, यूं समझो अपनी जान से ज्यादा आमना के लाल से प्यार ना कर ले, वो मोमिन नहीं हो सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्या बात है, बेशक जानते थे ये माल नबी के सदके में है। क्यों? आला हजरत ने फरमाया, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तारा तेरा। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब पीना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। आका ने फरमाया, उस्मान जाओ और उस यहूदी के पास जाकर कहना कुआं बेचोगे। अल्लाह अकबर। उसने कहा, जैसे ही मेरे आका का फरमान सुना उस्मान गनी उठे। मेरे आका ने फरमाया, जितना बोलेगा, जितना मांगेगा उसका डबल देने को तैयार हो जाना। क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। गए यहूदी के पास जाकर पहुंचा। यहूदी क्या करता था, कुआं एक था और पानी वही बेचता था। वो जितनी मनमानी चाहता था उसकी कीमत बढ़ाकर पानी बेचता था। उसने कहा, उस्मान गनी पहुंचे, कहा भाई का क्या हुआ? कहा कि आप अपना कुआं बेचोगे? कहा क्या बात करते हो, मैं कुआं नहीं बेचूंगा, कुआं नहीं बेचूंगा। इतना सुनना था। कहा कि जो दाम बोलोगे उसका दुगनी दिया जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं बेचूंगा मैं। सुने, हम और आप होते तो कहते हजरत ने मुझे भेजा, हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम निजामी साहब ने, अब काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अल्लामा अफसार साहब ने कोई बात नहीं, मौलाना मोहम्मद हुसैन बिस्वाही ने कोई बात नहीं, नहीं माना भाई छोड़ दीजिए। लेकिन उस्मान गनी को सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात रोते रहे, सारी रात जागते रहे। सुबह का सफेदा फैला, उस्मान गनी आका की बारगाह में गए। मेरे आका ने फरमाया, उस्मान सारी रात तुझे नींद नहीं आई? कहा या नबी अल्लाह नींद नहीं आई है। आका हम कहते हैं हम प्यार करते हैं, हम कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का एक गोशा पढ़िए। मेरे नबी ने सिर्फ ये कहा था, ऐ अबू बकर हमें जो है मक्का छोड़ना है, मक्के से हिजरत करनी है। खुदा की कसम दिन नहीं बताया था, वक्त नहीं बताया था, घड़ी नहीं बताया था, समय नहीं बताया था। लेकिन जब मेरे मुस्तफा मक्के से हिजरत करने की रात अबू बकर सिद्दीक के घर पे गए, दरवाजा खटखटाया
आया। अबू बकर सिद्दीक ने फौरन दरवाजा खोला। मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान क्या तू रात में सोया नहीं है? उस्मान गनी ने कहा, खुदा की कसम आका आपने कहा था हमें हिजरत करनी है, उस रोज से लेकर आज तक मैं रात में सोया नहीं कि मेरे मुस्तफा कब आवाज दे गुलाम हाजिर हो जाए। क्या बात है, क्या बात। मोहब्बत करते हैं हम, मोहब्बत करते हैं यार। मोहब्बत तो उसे कहते हैं, इश्क तो उसे कहते हैं। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात निकली है। उस्मान गनी ने कहा, आका मुझे रात भर नींद नहीं आई है। मेरे आका ने फरमाया, उस्मान जा उससे कहना अगर कुआं नहीं बेचेगा तो कम से कम किराए पे दे दे। लेस पे ये कुआं हफ्ते में भर में एक दिन दे दे। वो गए, बहुत भीड़ लगती थी ना, पानी लेने के लिए लोग आते थे। गए, उस्मान गनी ने कहा, देखिए भाई आप कुआं बेचोगे? कहा मैंने आपसे कल कहा था कुआं नहीं बेचूंगा। कहा एक काम कीजिए, कुआं नहीं बेचोगे तो कम से कम किराए पे दे दो, हफ्ते में एक दिन। क्या बात। उसने कहा यार कुआं तो किराए पे देने से ठीक रहेगा, हफ्ते भर परेशान रहते हैं, हर दिन तो हम बेचेंगे, एक दिन दे देते हैं, इतना लेंगे। उसने कहा डबल ले लो, पैसा दे दिया। आप फिर भी आ जाते। उस्मान गनी घर नहीं आए, चले गए, दूसरे के दरवाजे खटखटाया। कहा क्या बात है? कहा एक काम करो, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 10। कहा बर्तन कितने? कहा 10। एक काम करो, ये पैसे ले लो और 10 बर्तन और खरीद लो। दूसरे के घर गए, कहा आपके घर में कितने लोग हैं? 20। कहा ये 20 जो है बर्तन का पैसा और ले लो। सबके घर में गए, मदीने के हर गली में जा जाकर लोगों को पैसे दिए, बर्तन ज्यादा खरीदवाए। और जुमेरात हो या जुम्मे के दिन, जो भी दिन उन्होंने कुआं लेस पे लिया था, उस दिन पूरे मदीने के लोग उस कुएं के पास जमा हो गए। सबने अपने अपनी बर्तन भर लिया, भरकर अपने घर लेकर के गए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। दूसरे दिन जब यहूदी कुएं के पास आया पानी बेचने के लिए, तो कोई मदीने का पानी लेने के लिए आया ही नहीं है। बड़ा परेशान हुआ, आज नहीं आया, देखते हैं कल आएगा। कल भी नहीं आया। तीसरे दिन आएगा, तीसरे दिन भी नहीं आया। चौथे दिन आएगा, उस दिन भी नहीं आया। पांचवें छठे दिन नहीं आया। सातवें दिन जैसे ही तो लेस पे जिस दिन लिया गया था, उस दिन सारे मदीने के लोग बर्तन लेकर के पहुंच गए, पानी भर लिया, फिर लेके घर चले गए। अब जो है कल से फिर कोई पानी लेने के लिए नहीं आया। यहूदी बड़े परेशान हो गया, ये पानी लेने के लिए क्यों नहीं आता है? क्योंकि लोगों के घरों में इतने बर्तन हो गए थे, नहाने का पानी जमा कर लिया है, पीने का पानी जमा कर लिया है, खाने पीने का पानी जमा कर लिया है, सब्जी और खाना पकाने का पानी जमा कर लिया है। एक दिन ऐसा आया, यहूदी खुद सोचने लग गया, अब अगर वो कुआं खरीदने आएगा तो मैं कुआं बेच दूंगा, क्योंकि कुएं के पास कोई आता ही नहीं। तुम करते हो, आप करते हो तो भाई को प्यासे रखते हो, आप करते हो तो भाई की जमीन को एलार में अपना नाम करते हो। अरे सियासत वो करो कि दुनिया देखती रहे, दुनिया सोचती रहे। यहूदी ने सोचा अब बैठ के क्या करूंगा, कुआं इसे दे देता हो, ऐसे भी कोई मामला नहीं बन रहा है। फिर वो उस्मान गनी ने कुआं खरीदा और नबी के तमाम आशिकों के लिए, मुस्तफा के गुलामों के लिए, मदीने के दीवानों के लिए वो कुआं जो है सबके लिए उन्होंने वक्फ कर दिया। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम के लिए अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है, आपको मालूम मता दिया है, आपको खजाना दिया है, ये दौलत मिली है, ये दौलत मुस्तफा जान रहमत के सदके में मिली है, अल्लाह का फजल हुआ है। अल्लाह का फजल देखे, रब का कमाल देखे, मेरे रब्बे सुल जलाल ने ये सारी चीजें आपको अता की है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह चार दीवारी के लिए कब्रिस्तान को चारों तरफ से घेरना है, इसलिए इन्होंने सरवरे कायनात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। आप और हम यहाँ जमा हुए हैं, बच्चे जवान बूढ़े यहाँ हैं, इलाके के दानिश्वर लोग हैं, इलाके के जानकार लोग हैं। अल्लाह ने दौलत भी दी है, साथ में दिल भी दिया है कोई यहाँ इतने बड़े मजमे में तो मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह दिगली का कोई एक आदमी 10,100 रुपए दे दे, है कोई ऐसा? पूरे दिगली के अल्हम्दुलिल्लाह होगा।